ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା BHI 141 ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଚାଇନା from 1840 AD to 1978 AD। ଆଜିର ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ୟୁନିଟ୍ 1 ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ 1ରେ ଅଛି ଚାଇନା ଏ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ବା ଚୀନର ଏକ ଐତିହାସିକ ଆଲୋଚନା ବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବା ଚାଇନାର ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟପିକଟା ହେଉଛି ଦ ଓପିଏମ୍ ୱାର୍ସ ଇନ୍ ଚାଇନା। ତା ଅର୍ଥ ଚାଇନାରେ 1850 ମସିହା ବେଳକୁ 1840ରୁ 1860 ମସିହା ଭିତରେ ଦୁଇଥର ଓପିୟମ୍ ବା ଅଫିମକୁ ନେଇକି ଲଢ଼େଇ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ସେଇ ଦୁଇଟି ଅଫିମ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯିବା ଚାଇନାର ଐତିହାସିକ କଥା, ଐତିହାସିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ, ଐତିହାସିକ ବିଭବ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହାର ଯେଉଁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ଏଇ ଟପିକ୍ ପଢ଼ିବାର, ଯେ ଆମେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଚାଇନାର ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଏବଂ ଚାଇନାର ଯେଉଁ ଇତିହାସର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଅଛି, ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, ଯେଉଁ ଫିଚର୍ସ ଅଛି, ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଚାଇନା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଏକ ପୁରାତନ ସଭ୍ୟତାର ଦେଶ। ବହୁ ଯୁଗ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଉନ୍ମେଷ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଭାରତ ଛଡ଼ା ପୃଥିବୀର ଆଉ ତିନୋଟି ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ, ତିନୋଟି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ନଦୀ ମାତୃକା ସଭ୍ୟତା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ନୀଳ ନଦୀର ସଭ୍ୟତା ଆଫ୍ରିକାର ଇଜିପ୍ଟ ବା ମିଶରରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ୟୁଫ୍ରେଟିସ୍ ଟାଇଗ୍ରିସ୍ ନଦୀର ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ସେଟା ହେଉଛି ମେସୋପୋଟାମିଆ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏବେ ଇରାକ ବୋଲି କହୁଛେ। ତୃତୀୟ ଭାରତରେ ହେଇଥିଲା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ଉପକୂଳରେ ବା ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଥିଲା ଚୀନରେ ହୋୟାଙ୍ଗ ହୋ ୟାସିକିଆଙ୍ଗ ନଦୀ କୂଳରେ। ତେଣୁ ଚୀନ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଏକ ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତି ବା ପୁରାତନ ସଭ୍ୟତାର ଦେଶ। ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ସ୍କଲାର୍ସ ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେବ, ଏବଂ ଚାଇନା ଇତିହାସର ଯେଉଁ ମେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଇନାର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଆମେ ସେ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ଶେଷକୁ ଯେଉଁ ଚାଇନାର ଯେଉଁ ରାଜବଂଶ ଶାସନ କରିଥିଲା, ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି 19 ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ବା 1912 ମସିହାରେ ଯାହାର ସମାପ୍ତି ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ କୁଇଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଏବଂ ବା ଯାହାକୁ ମାଞ୍ଚୁ ଡାଇନାଷ୍ଟି ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ, ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ଚାଇନାର ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ନିଜର ଯେଉଁ ନେବର୍ସ ବା ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଚେଞ୍ଜିଂ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅଫ୍ ଚାଇନା। ଚାଇନା ବିଷୟରେ କ'ଣ ସବୁ ଐତିହାସିକ ମାନେ ବା ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଚାଇନାକୁ ନେଇକି କିଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଚାଇନାର ସ୍ଥିତିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଚାଇନାର ଇତିହାସ ଯାହା ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସ୍କଲାର ମାନଙ୍କର ଅବଦାନ। ଯେତେବେଳେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ନାବିକମାନେ ବା କମ୍ପାନୀ ଚାଇନାରେ ଯାଇକି ପ୍ରବେଶ କଲେ, ପ୍ରଥମେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ବାଲା ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ରଷିଆ, ଏ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ ଚାଇନାରେ ନିଜର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁକି। 1600 ମସିହା ଠାରୁ 1600 ମସିହା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରା 17th ସେଞ୍ଚୁରୀ ସାରା, 1600 ମସିହାରୁ 1699 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମସ୍ତ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ, ଏମାନେ ଚାଇନାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଓ ସେମାନେ ଚାଇନା ବାବଦରେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯାହା ବିବରଣୀ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଦେଶର ଯେଉଁ ସ୍କଲାର ମାନେ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନୀମାନେ, ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ମାନେ, ସେମାନେ ଚାଇନା ବିଷୟରେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆମର ଚାଇନା ଉପରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ତିଆରି କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା, ଏ ଜ୍ଞାନ ବହୁ ସମୟରେ କୁହାଯାଏ ଏକତରଫା ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ ଚାଇନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେମାନେ ଚାଇନା ସଭ୍ୟତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିନଥିଲେ,
ଚାଇନାର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ଥିଲେ। ଚାଇନାର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି, ଚାଇନାର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଛି, ସେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ବା ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ବା ସେମାନଙ୍କ ତର୍ଜମା ଗୁଡ଼ିକ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନାଲିସିସ୍ ବା ଆଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଇତିହାସ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ସେହି ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଚାଇନାକୁ ବିଭିନ୍ନ ୟୁରୋପୀୟ ଶକ୍ତିମାନେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଚାଇନାକୁ ବାରମ୍ବାର ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଚାଇନା ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ବହୁ ପ୍ରକାରର ଅତି ଲଜ୍ଜାଜନକ ସନ୍ଧି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଡିକ୍ଟେଟେଡ୍ ଟ୍ରିଟି ଥିଲା ବା ଜବରଦସ୍ତ ଚାଇନା ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଇଥିବା ଏସବୁ ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ଧି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦେଖିକି ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାୱାର ଲୋକମାନେ ବା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନେ ଚାଇନା ଉପରେ ଯେଉଁ ଧାରଣା କରିଥିଲେ, ସେଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ସେମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସେଇ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ସକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆହୁରି ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଏଇଟା ସବୁ ସମୟରେ ଠିକ ନଥିଲା। ଚାଇନା ସେ ସମୟରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନଥାଇପାରେ, ତାର ବିଭିନ୍ନ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ତାହା ଚାଇନା ଠିକ ଭାବରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁକାବିଲା କରିନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚାଇନାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ସମୟରେ ଚାଇନା ପୃଥିବୀରେ ବହୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଚୀନର ରାଜାମାନେ, ସମ୍ରାଟମାନେ ଚୀନରେ ବହୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଏପରିକି ଦେଖାଯାଇଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରିକି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଶାସନ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଚାଇନାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭଲ ଗୁଣ ହେଉଛି, ଯେତେ ପୁରାତନ ସବୁ ସିଭିଲାଇଜେସନ ସବୁ ଆମେ ପଢିଛେ, ଯେତେ ପୁରାତନ ସଭ୍ୟତା ଗୁଡ଼ିକ ସମୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ଚାଇନା ଗୋଟିଏ ସଭ୍ୟତା ଯାହାର କି କୌଣସି ସମୟରେ ଇଣ୍ଟରପ୍ସନ ହେଇନାହିଁ। ଏ ମଝିରେ କେବେ ଏହାର ବିଖଣ୍ଡିତ ହେଇନାହିଁ। ଏହାର ଯେଉଁ ଧୀରେ ସ୍ଥିରରେ ଆଗେଇ ଚାଲୁଛି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ, ତାହା କେବେ ନଷ୍ଟ ହେଇନାହିଁ। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ଆମେ ସବୁ ପଢିଛେ ତାହା କେଉଁ ସମୟରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତ ତାରି ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତା ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଚାଇନାରେ ସେଭଳି କଥା ଘଟିନାହିଁ। ଚାଇନାର ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା, ସେଇ ସଭ୍ୟତା ଧୀରେ 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 ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଇଣ୍ଟରପ୍ସନ, କୌଣସି ତାର ମାନେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନତା ନ ହରାଇକି ବହୁଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ସେ ସଭ୍ୟତା ଚାଇନାରେ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି। ଏବଂ ସେ ପୁରାତନ ସଭ୍ୟତାର ବହୁ ଅଂଶ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚାଇନାରେ ପାଉ। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାହା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ ଥିଲା, ତାହା ଧୀରେ 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 ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ବି ଚାଇନାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ କଥା ଯେ ଚାଇନା କାହିଁକି ଫେଲ୍ କଲା। ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଚୀନର କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଚାଇନା ଫେଲ୍ କରିଗଲା, ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଚାଇନାର ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ଚାଇନାରେ 1949 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମାନେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ। ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଚାଇନାର ମଡର୍ଣ୍ଣ ଏଜ୍ କେବେ ପ୍ରବେଶ କଲା, କୋଉ ସମୟରେ ଚାଇନାରେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଏଜ୍ ବା ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ପ୍ରବେଶ କଲା। ସ୍କଲାର ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ବା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଆସିବା ପରେ ହିଁ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଠାରୁ ବ୍ରିଟିଶ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଲୋକମାନେ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ଚାଇନାରେ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ବହୁ ସ୍କଲାର ମନା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଚୀନରେ ଯେଉଁ କୁଇଂ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଥିଲା ବା ମାଞ୍ଚୁ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ଥିଲା, ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଇ ସମୟରେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ଚାଇନାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ଆଧୁନିକତା ଚାଇନାରେ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। କିଭଳି ଭାବରେ ନା ଏ ସମୟରେ ମାଞ୍ଚୁ ସରକାରର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଏଠି ଇକୋନୋମିକୁ କମର୍ସିଆଲାଇଜ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବହୁ ସମୟରେ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ବା ସହର ଗୁଡ଼ିକର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ନୂଆ ନୂଆ ସହର ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ପୁରୁଣା ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ଆକାର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଲିଟରାସି ବା ସ୍ୱାକ୍ଷରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବି ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ କେବଳ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆସିଲା ପରେ ତାରି ପ୍ରଭାବରେ ଚୀନରେ ବା ଚାଇନାରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର
ଅୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ତାହାକୁ ବହୁ ସ୍କଲାର ବା ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମନା କରନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ମାଞ୍ଚୁ ଶାସନ ଦୀର୍ଘ 300 ବର୍ଷରୁ ଉଦ୍ଧବ ଶାସନ କଲା ସେ ଶାସନ କାଳରେ ମାଞ୍ଚୁରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଚାଇନାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଚାଇନା ପୁରୁଣା ସିଷ୍ଟମରେ ସେମାନେ ବାହାରର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରୁନଥିଲେ। ଚାଇନା ଏକ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଚାରିପଟ ଗୋଟେ ପାଚେରୀ ପକେଇକି ତା ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଦେଶ ପରି ଥିଲା। ଏମାନେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବେଶୀ କିଛି ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ କି ଧୀରେ 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 ଏ ଚାଇନାର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ତାହା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା, ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ଯଦି ଚାଇନା ବାହାର ପ୍ରଭାବରୁ ନିଜକୁ ପୁରାପୁରି ମୁକ୍ତ ରଖୁଥିଲା ତାହେଲେ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ତା ଚାଇନାରେ କେମିତି ପ୍ରବେଶ କଲା। ଏବଂ ସେତିକି କଥା ନୁହଁ, ଏବେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଚାଇନାରେ ବହୁ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ଫିଲୋସଫି ଦର୍ଶନ ତାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି 10th century BC ରୁ 6th 7th 4th century 5th century BC ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଝାଉ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଏଇ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଫିଲୋସଫି ଡେଭଲପ କରିଥିଲା, ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ ସମୟ କୁହାଯାଏ ଯେ 100 ସ୍କୁଲସ୍ ଅଫ୍ ଥଟ୍, ପ୍ରାୟ 100 ପାଖାପାଖି ବା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଧାର୍ମିକ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଆଧାର ଏଇ ସମୟରେ ଚୀନରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ଆଉ ଜଣେ ଫେମସ୍ ସ୍କଲାର ଥିଲେ ଯୋଉ ଚାଇନାର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କନଫ୍ୟୁସିୟସ୍। କନଫ୍ୟୁସିୟସ୍ 550 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ଯେତିକି ପ୍ରଭାବ ଥିଲା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବି ଚୀନର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଧାରାରେ କନଫ୍ୟୁସିୟସଙ୍କର ଯୋଉ ବାଣୀ ଆଦର୍ଶ ନୀତିର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତୀୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ଏ କନଫ୍ୟୁସିୟସ୍ 550 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ମାଷ୍ଟର କଙ୍ଗ और कोंग फुरी बोली तांको कुहाଯାଏ। कोंग फुरी बा मास्टर कोंग। कोंग माने मास्टर, ये बहुत ज्ञानी थिले एवं से तांको समय रे जो धारा गुडी को बदली जाउथिला, लोक माने बदलुथिले, समाजर जो स्थिति, समाजर विभिन्न प्रकार जो विभिन्न प्रकार जो पंथा थिला, जो ट्रेडिशन कस्टम्स थिला, ताहा बदली जाउथिला। सेति पय से भारी मन दुख करुले और निंदा भी करुले। कहले ये सब जिनस गुड़िक जो मोराल, से कहते जे पुरातन प्रथा बदली जाटा हूँ गोटे मोराल डिग्रेडेशन, गोटे प्रकार नैतिकता दृष्टि अधपतन। तेणु नैतिक जदि समाज बदली जाऊँगी ये हूँ लोक मान जो नैतिक अधपतन। तेणु से लोक मान कहते पुणी तुम पुरातन जुग को जाओ, जो जुगे परस्पर फैमिली भितर, राजा प्रजा भितर, समाज भितर, परिवार भितर, देश राज्य भितर जो संपर्क थिला, दबा नबार संपर्क थिला, जो ऑब्लिगेशन सब थिला, ये संपर्कटा बहुत भल थिला, ताको रेस्पेक्ट करबा उचित। एवं ये जो रिलेशनशिप यह गोटे स्वर्गीय आधार रे प्रतिष्ठित होइतिला। तेणु याकू बदलैबाटा ठीक कथा नुहे। किंतु से गोटे कथा विश्वास करुले जे जो मनुष्यर टैलेंट अच्छी, मनुष्यर जो निजर अंतर्निहित शक्ति अच्छी, ताकू संपूर्ण प्रोत्साहन दबा उद्देश्य थिला। से चाहूले जो माने ज्ञानी गुणी लोक, जो माने जो जो क्षेत्र से दक्षता अच्छी, से दक्षता को ही से अधिक प्राधान्य दौले। एवं से कहते जे क्वांटिटी अपेक्षा क्वालिटी, जो संख्या अपेक्षा जो तार जो दक्षता को ही अधिक प्राधान्य दि जाउथला। तेणु से राजा संपर्क बहुत भल थिला। तेणु से कौन प्रादेशिक स्तर में राजा परामर्शदाता थिले बोली कहा जाए। तेणु ता परवर्ती समय ज्ञान बाणी चाइनार विभिन्न अंचल प्रभावित है और ता देहरे लोक माने जो विभिन्न तत्व को ग्रहण करने को लगिले। एवं ये जो कन्फ्यूशियस समय ठीक से समय आउ जड़े स्कॉलर थिले, आउ जड़े दार्शनिक थिले, ताका ना होची लाओजी। लाओसी बा लाओजी होचती आउ जड़े
दार्शनिक जे कि जो तत्व बाहर करता ताओइज्म बा दाओइज्म भी मध्य कहा जाए ताकर जो बही थिला से बही ना होची दाओ दे जिंग से कन्फ्यूशियस जहाँ कही जे ताठू अलग प्रकार रे कहूथिले एवं से कहूथिले जे जो मृत्यु जन्म ए सब जिनस ये सब अलग जिनस एवं याकू आमे निजे के कंट्रोल करि परिबा नाही समाज रो बहुत पृथ्वी रे बहुत कथा घटुची मनुष्य जीवन में बहुत कथा घटुची तण से विषय रे आम मानकर जो साधारण मनुष्यर जो चिंतन ताठू बहुत दूरे रे घटना गुड़िक तेणु से आम बेसी मुंड न खेल कि निजर जो सामाजिक स्थिति भितर आम निजर जो जीवन बंची रहा ही श्रेयस्कर बोली से कथा कहते आम बर्तमान आसवा चाइनीज इंपेरियल स्टेट चाइना इतिहास रे आम देखा जे को को समय रे को राजा माने राजवंश माने शासन करथिले एवं सेगुड़िकर माने विभिन्न जो ना सब कौन आम तो बहुत पुरातन जो जापर ना अति पुरातन समय तो जो थिला प्रस्तर जुग गुड़िक से विषय आलोचना करूना कि ब्रोंज एज जो आलोचना कर 1600 रु 1445 ख्रीष्टपूर्व सांग डायनास्टी शासन करुला ये सांग डायनास्टी थिला येलो रिवर उपरे नदी उपरे ये सांग डायनास्टी लोक माने शासन करुले राजा को झाओ वंशर राजा माने हत्या करके झाओ वंश स्थापना कले एटा ब्रोंज एज समय ये हूँ डायनास्टी झाओ डायनास्टी 1046 रु ख्रीष्टपूर्व 220 वर्ष ये हूँ 789 वर्ष काल चाइना को शासन करथिला लॉन्गेस्ट पृथ्वी ये हूँ गोटे राजवंश जार राजत्व लॉन्गेस्ट सबुठारु दीर्घतम एवं यह 789 मसीहा वर्ष शासन करथिला एठी यही समय कह जाउची जो कन्फ्यूशियस और लाओ से यही समय जन्मग्रहण करथिले वाणी प्रचार करथिले तापर क्वीन डायनास्टी आसिला ये हूँ चाइना रो प्रथम इंपेरियल डायनास्टी ये जो इंपेरियल डायनास्टी चाइना रे प्रथम वंश ये ख्रीष्टपूर्व 200 रु ख्रीष्टपूर्व 206 शासन करथिला और प्रसिद्ध राजा थिले जाना हूँ क्वीन सिंह हुआंगती ये क्वीन सिंह हुआंगती 246 250 मसीहा बेले से राजा होते ये होते फेमस राजा जे कि जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को तैयारी करथिले उत्तर पश्चिम पटु मंगोल माने अन्य जो सेमी नोमाडिक ट्राइबल माने आक्रमण करुथिले ता देरु चाइना को रक्षा करबा पाई कि प्राय 2500-3000 किलोमीटर ऊर्ध लंबर दीर्घर गोटे विराट विशाल प्राचीर से तैयारी करथिले से समय यूनिफॉर्म लीगल कोड इंट्रोड्यूस करथिले एवं सारा चाइना रे एक प्रकार स्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस करथिले एवं से कौन करथिले ना जो पिजन मान फार्मर मान कौन करथिले सीधा तांका से संपर्क रखिथिले एवं तांको डायरेक्टली आदाय करुथिले बहुत रास्ता घाट से निर्माण करथिले बहुत बहुत जो माप एवं ओजन जो स्टैंडर्ड को सारा तांको साम्राज्य से गोटे प्रकार करथिले एवं सिंहवंती होउती कोन ना कहा जाए जे से तांका समय रे ही चाइना को एक विशाल साम्राज्य रे स्थापन करिवार सक्सेसफुल हेतिले तापरे देखा जाइछि जे चाइना को विभिन्न नोमाड माने आक्रमण करिसंती एवं से माने चाइना रो विभिन्न अंचल को नष्ट करछंती बहुत दिन जाए चाइना रे जो डिसयूनियन कंटिन्यू करथला जे पर सोंग माने 960 ख्रीष्टाब्द रे आसी पहुंचते ये सोंग वंश परे परे आसिला हान डायनास्टी ये 200 सोंग वंश पूर्व हान डायनास्टी आसला ख्रीष्टपूर्व 200 रु ये ख्रीष्टपूर्व 220 एडी पर्यंत प्राय 400 वर्ष काल माने शासन करिसंती ए हान हान डायनास्टी पर टांग डायनास्टी आसिला ये 618 ख्रीष्टाब्द रु 709 ख्रीष्टाब्द पर्यंत राजत्व करुले तापरे विभिन्न समस्या रे पुणी चाइना रे विभिन्न प्रकार राजनैतिक विशृंखला देखा देछि परे पुणी 960 ख्रीष्टाब्द रे सोंग राजवंश आसी स्थापन कला ये सोंग राजवंश 960 रु 1279 पर्यंत शासन करथिला आरो जोड़िए पीरियड अछि नॉर्दर्न सोंग एंड सदर्न सोंग
उत्तर पटे सोंग माने शासन करथिले परे तार पतन घटिला एवं सेठी परे युआन डायनास्टी बा मंगोल माने कुबले खान को नेतृत्व रे आसी तको अधिकार करने गेले से समय दक्षिण पटे मध्य सोंग माने थिले परे कुबले खां दक्षिण पटर राजा को सोंग वंश राजा को परास्त करके हत्या कले एवं तापर निज राज्य स्थापन कले ये बहुत शक्तिशाली राजा थिले एवं यांक समय रे इटाली रो जो मार्को पोलो तांको देश को परिभ्रमण करने को आसथिले एवं बहुत कथा से समय से वर्णना करि जाइछंती या परे असला मिंग डायनास्टी याको कहा जाय द ग्रेट मिंग ये 1368 रु 1684 मसिया पर्यंत एमाने कोन कले ना चाइना को शासन करथिले ये होची लास्ट डायनास्टी जो थरे की जो लोक माने मिंग डायनास्टी लोक माने होचंती हान पीपल बा मूल चाइना रो लोक माने या ये सरी गला येठू चाइना रो मूल बासना माने शासन करे नाती या पर जो वंश आसिला बा क्विंग वंश बा मांचू वंश ये 1636 रु 1911 मसिया पर्यंत शासन कला एवं ये जो प्रायतः 300 वर्ष शासन करबा भितरे ये वंश पतन घटला 1911 मसिया रे विद्रोह रे एवं किंतु ये जो मांचू माने माने मांचुरिया पटर लोक माने एमान को कहा जाय माने चाइना रो मूल बासिंदा होंती एवं मूल जो हान लोक माने बा दक्षिण पटर लोक माने एरिया जोरे बेसी परिमाण रे मूल चाइना लोक बोली कहा जाय से लोक माने एमान को विदेशी बोली भाबुथिले एवं मुख्यतः चाइना लोक बोली माने भाबु नथिले एवं ये मांचू नॉर्थ ईस्ट पटे रहउथिले मांचुरिया पटे एवं सेठु से माने कोन कले ना आक्रमण करिकि चाइना को अधिकार कले एवं यांक समय रे चाइना रो साम्राज्य सबुठारु अधिक अंचल रे प्रवेश करिथिला अधिक बड़ अंचल रे प्रवेश करिथिला या परे आमे जो देखिबा जो यार कोन सब परिवर्तन सब हेछि क्वीन जो प्रथम वंश थिला जो सिंह हुआंग की राजा थिले से कोन कले ना जो पुरातन जो अरिस्टोक्रेटिक फैमिली सब थिले सेमानकर अधिकार को छड़े नहीं गले एवं सेठी कोन कले लोकंग संगे ताकर संपर्कटा रिलेशन रहला कहा संगे ना पिजन मानन संगे ही कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पिजन्स डायरेक्टली तो स्टेट एवं पिजन राज्य एवं कृषक एमान मध्यरे डायरेक्ट साम्राज्य संपर्क रहला हान रूलर माने कोन कले यांकर जो अरिस्टोक्रेटिक एलिट थिले जो माने सब संभ्रांत वंशर लोक थिले सेमान को बहु परिमाण रे जमी बाड़ी देथिले माने पूर्ण थरे सेमानक शक्ति पूर्ण जागृत करेले किंतु एमाने कोन हेले ना परवर्ती समय रे एमाने परस्पर मध्यरे बाडिया बाडी हेले लड़ाई कले युद्ध कले एवं सेमान भितरे ए सकासे देशर बहुत क्षति घटिथिला एवं अरिस्टोक्रेसी लोक माने जो पूर्ण परवर्ती पर्याय से माने कॉमन पीपल अरिस्टोक्रेसी एवं जेंट्री भितरे से माने निजको बंचेबारे लगे एथनिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी चाइना रो जो देश से देश विराट बड़ देश पृथ्वी रो तृतीय बृहत्तम देश चाइना जहार लोक संख्या 140 कोटी रु ऊर्ध्व दिने बहुत दिन पर्यंत या पृथ्वी सबठारु अधिक लोक संख्या विशिष्ट देश थिला एबे भारत ताकू क्रॉस करि जाईची किंतु एटी आर ए विशाल देशर प्राय 14 की 15 टी देश सहित आर जो सीमा लागी रही एवं यार लोक माने विभिन्न प्रकार एठी हमें देखिबा ये होची एक विभिन्न प्रकार विभिन्न जातिर लोक मानकर ए देश एठी विभिन्न भाषार लोक माने एठी अछंती एवं सबु अंचल जो लोक मानकर जो संस्कृति जो परंपरा जो सामाजिक स्थिति समान में देखा गला जेतबे बुद्धिज्म आसिला ए जो पुरातन लोक मानक पई जो विभिन्न वेराइटी लोक मान सब थिले विभिन्न प्रकार लोक मान सब थिले से मान पई बुद्धिज्म एक प्रकार रो नुवा गोटे कॉमन प्लेटफॉर्म आनि के देला बौद्ध धर्म रो जो विभिन्न प्रकार रो जो एक्सेप्टेंस अछि जो ग्रहण करिवार शक्ति अछि समस्त को कोडे नै जिवार शक्ति अछि जहा पर हेला कोन ना चाइना रो लोक माने बौद्ध धर्म से प्रभावित हेले एवं बौद्ध धर्म ग्रहण कला परे बौद्ध धर्म बहु परिमाण रे चीन रो सामाजिक एवं राजनीतिक एकता आनिबारे बहु परिमाण रे सहाय्य करिछि इंटरकास्ट मैरिज हला चाइनीज और नॉन चाइनीज मान भितर नॉर्थ एवं साउथ भितर भी संपर्क वृद्धि पाइला
ट्रेड एवं सोशल कनेक्शन वृद्धि पाइला तेणु यार भितर कौन है ना चाइना धीरे 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 तार सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन मान देखा टांग डायनास्टी जे 618 रु 907 मध्य शासन करुला एठी कौन गोटे कस्मोपोलिटानिज्म ओपननेस डेभलप कला यही समय फॉरेन ट्रेड बहु परिमाण वृद्धि पाइला एवं सोसाइटी डाइवर्स है चाइनार जो कल्चर समृद्ध है विभिन्न समय विभिन्न अंचल लोक मैंने चाइनार जो प्रभाव विस्तार कले चाइनार जो संस्कृति को बहु परिमाण से कौन कला ना प्रभावित कला आम देखा जे कॉमर्स डेवलप करुच्ची इकोनॉमी डेवलप करुच्ची पर्टिकुलर सोंग पीरियड होता 960 रु 1279 मसीहा मध्य सोंग माने शासन करते रिमार्केबल इकोनॉमिक ग्रोथ होता एवं इंटर रिजनल कॉमर्स जो निज अंचल भितर अंतर वाणिज्य जो निज देश भितर विभिन्न अंचल सहित जो वाणिज्य संपर्क बहु परिमाण वृद्धि पाई कृषक माने बहु परिमाण शस्य विभिन्न उत्पादन करुले ये लोक माने मार्केट रे बिक्री करुले एठी बहु परिमाण पानी मिलुथिला एवं बहुत भेराइटी क्लाइमेट सब थिला तो क्लाइमेट को लेकिन सब शस्य अमल करागला एवं यही समय कौन है ना चाइना लोक माने शीघ्र धान पाचि जाउथिबा धान चाष करिवारे सफल हेले जो बहुत दिन धान चाष होता ता न कि जो भेराइटी धान मिलला तैयारी करागला ताकू विभिन्न उपाय रे ता बहुत शीघ्र कौन कला ना पाचि जाउथला तेणु एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़िला लोकंर खाद्य परिवार बढ़िला विभिन्न अंचल कौन है स्पेशलाइज हो गला कौन ना पर्टिकुलर क्रॉप नहीं पर्टिकुलर शस्य को लेकिन से अंचल गुड़िक कौन है ना विख्यात हो गला कॉटन हो बा टी हो से गुड़िक किसी पर्टिकुलर अंचल तार क्लाइमेट को लेकिन तार जोग्राफिकल कंडीशन को लेकिन बहु परिमाण फलिला चाष भी से मार्केटा वृद्धि पाइबा लगिला एठी बेपार बढ़िया संगे गला मनी ट्रांजैक्शन है एवं प्रथम थर कौन है ना पृथ्वीर पेपर करेन्सी चाइना रे सोंग मान पीरियड रे ता डेवलप होता लोक माने टैक्स बहु परिमाण देले राजा रोजगार मध्य है एवं से विभिन्न टाउन और अर्बन एरिया सब डेवलप कला एवं सहर गुड़िक वृद्धि पाइला जपरिक काइफेंग आउ सुजहाउ और काइफेंग दुईटी सहर ए समय बहुत परिमाण अर्थनीति को अर्थनीति विकास लाभ कर दुईटा सहर वाणिज्य केन्द्र दुईटा सहर होते ये लोक संख्या बहु परिमाण वृद्धि पाई कह जाए ये प्रस्पेरिटी आसवा जो चाइना रे लोक संख्या बहु परिमाण वृद्धि पाई 1000 ख्रीष्टाब्द बेलू 10 कोटी लोक चाइना थे 1700 मसीहा बेलू ये लोक संख्या होगा 26 कोटी एवं जो क्वीन डायनास्टी मांचू डायनास्टी जो शासन सरिया को बसिला ता डबल है कि 50 कोटी पहुंच गला तेणु आप अनुमान करें जे चाइनार लोक संख्या वृद्धि करने पछरे जो एग्रीकल्चर एवं तार आनुषंगिक जो उत्पादन एवं ता सहित जो चाइना निज भितर जो वाणिज्य कारोबार करथिला ये सब जिनस कौन है ना डेवलप कला मु आगु कही जो क्वीन डायनास्टी ये हूँ नॉन हान पीपुल ये मांचू आसला मांचू लोक मैंने शासन कले मांचू मैंने केवल चाइना को अधिकार कलेनी मंगोलिया चाइनीज तुर्किस्तान जहाँ को कह जीन जियांग तिब्बत एवं किसी साउथ वेस्ट अंचल अधिकार करते वियतनाम लाओस कंबोडिया ये सब अंचल अधिकार करते ये जो क्वीन डायनास्टी ये एक वर्चुअली अनचैलेंज पावर भाव में मुंड टेकी या समय चाइनार एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप करथिला यार पूरा स्ट्रक्चर एकदम क्लियर कट भाव में लोक भितर प्रवेश करथिला एवं 1660 रु 1800 मसीहा पर्यंत ये लोक माने हार्ड वर्किंग रूलर्स शासन रे माने कोन कले ना डेवलप कले एवं चाइना गोटे बहुत शक्तिशाली देश भाव में यूरोप रे एशिया रे डेवलप करथिला किंतु ये जो डेवलप करथिला ये डेवलपटा परवर्ती समय रे जतबे मांचू शासन पूर्ण हो गला
ঊনବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ତାର ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲା ଏବଂ ଚାଇନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ଦୁର୍ବଳ ଶକ୍ତି ଭାବରେ ନିଜକୁ ପାଇଲା ଏବଂ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ଚାଇନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପଛୁଆ ଦେଶ ଭାବରେ ପରିଣତ ହେଲା ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଠ ପଢିବା ତା ନାଁ ହେଉଛି ଓପିୟମ ୱାର୍ସ ଇନ୍ ଚାଇନା। जो ओपियम वार्स चाइना रे हला बा अफिम युद्ध हला या कहीं हला ना ये जोड़िए युद्ध होइथिला गोटे हेतिला फर्स्ट ओपियम वार आउ हेतिला सेकंड ओपियम वार। फर्स्ट ओपियम वार जतले हेतिला सेटा होची केते बेले ना जतले चाइना रो मांचू सरकार इंग्रज मानकू ताको देश रे अफिम बिक्री करबा पाई कि मना कर स्ट्रिक्टली मना कर एवं चाइना रो राजांकर जो रिप्रेजेंटेटिव से आसी कौन कले ना जो बेआईन सब अफिम थिला ताको जबत कले और सब नष्ट कर देले। एते परिमाण रो अफिम नष्ट हो जिबारु इंग्लैंड रागी जाइथिला एवं ताकर सेठी जो चाइना रो जो ऑफिसर मान थिले रिप्रेजेंटेटिव मान थिले से गवर्नमेंट रो परमिशन आनले। प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी सेठी शासन करथिला सेठी पहुंचथिला परवर्ती समय रे ईस्ट इंडिया कंपनी सह अन्य कंपनी माने मध्यम कले तबे ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली टाको 1830-35 मसरे उठे दिया जायतिला। परे चाइना रो कहला ना ए जो लड़ाई हेतिला इंग्लैंड सहित प्रथम युद्ध तक कहतला फर्स्ट ओपियम वार। ए फर्स्ट ओपियम वार रे चाइना अति कदर्य भाव हारी जायतिला शोचनीय भाव हारी जायतिला। चाइना रो जो भीतर रो जो सब दुर्बलता ताहा जना पड़ जाई थिला। तेणु एठू आमे आरंभ करिबा जे चाइना रे ओपियम केमिति पसिला। ओपियम चाइना पे किछि नुवा न अफिम चाइना पे किछि नुवा न चाइना रो जो अफिम सब जाइथिला सिटी से माने तो औषध भाव में व्यवहार करा जाउथिला। चाइना सरकार बा चाइना राजवंश लोक माने शासन आगुरु अफिम चाष करूथला सिटी ता लिमिटेड वे होथिला ता केवल औषधीय गुण भाव में ता व्यवहार करा जाउथिला। किंतु ता परवर्ती समय रे इंग्लैंड जते बेले चाइना रे प्रवेश कला एवं वाणिज्य सिटी आरंभ कला सेठी से माने कोन कले ना अफिम को पूरा चोरा कारबार कले प्रबल भाव में चोरा कारबार करबा फल कोन हला ना चाइना रो निजर लोक मानकर स्वास्थ्य खराब हे गेला एवं चाइना रो बहुत अर्थ इंग्लैंड पकु चले गला। चाइना इंग्लैंड कोन थला ना चाइना रे अफिम को थला ता बदले रुपा एवं सोना नै जाउथला। तेणु चाइना रो बहुत परिमाण रुपा एवं सोना कोन कला ना इंग्रज मान हाथ को चले गला। आगुरु जो इंग्रज माने चाइना संगे वाणिज्य करा बेले चाइना जिनस नै बिक्री किला करूथिले और चाइना रो लाभ होउथिला। वर्तमान ता उलटी गला एवं माने लाभवान हेले चाइना सरकार एथे कोनसी जेहेतु एगुडी को बहुत परिमाण चोरा कारबार होउथिला सेथु डायरेक्ट टैक्स बा टिकस चाइना सरकार बहु किछि जाउ नथिला। हमें जानि छे जे पोर्तुगीज माने प्रथमे 1500 बेले को अर्ली 1500 बेले को चाइना रे प्रवेश कले ताको चाइना रो जो लोक शासक माने ताको अलाउ कले सेते बेले गोटे अंचल थिला ताको कैंटन बोली कहा जाउथिला। कैंटन रो ग्वांगझाओ बोले कि प्रोविंस अछि सेही प्रोविंस रो वर्तमान जो कैंटन ना वर्तमान ताला ग्वांगझाओ से ग्वांगझाओ पूरा समुद्र को लागि कि थिला तळे चाइना सागर सह लागि कि थिला प्रशांत महासागर सह तार कनेक्शन थिला एवं एठू कैंटन एरिया जहा को जाउथिला से कैंटन एरिया रे प्रथमे पोर्तुगीज माने तापरे डच तापरे ब्रिटिश तापरे फ्रांस तापरे जर्मनी एमरा सब सेठी ही निजर वाणिज्य कोठी मान स्थापन करथिले। जो कैंटन एरिया गोटे छोटो एरिया जहार ग्वांगझाओ जो प्रोविंस बा राजधानी वर्तमान अछि से अंचल से कैंटन रे सब यूरोपीय मानकू रहिबा पाई कि चाइना रो अथॉरिटी बाध्य करथला से मानकू अलाउ करा जाउथला से बाहर जाई कोठी वाणिज्य कारोबार करिया पाई कि सेठी रहउथिले एवं सेठू से माने चाइना रो जो अथॉरिटी थिले चाइना रो जो वाणिज्य बणिक माने थिले चाइना रो जो बणिक संघ थिला तारी माध्यम रे से माने व्यापार वाणिज्य करूथिले। पाश्चात्य व्यापारी मानकू
ଚାଇନା ସହ ଡାଇରେକ୍ଟ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିବା ପାଇଁ କି କୌଣସି ସବୁ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା, ପରମିଶନ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ଯୋଉ ଗୁଆଙ୍ଗଝାଓ ଯୋଉ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ, ସେଇ ପ୍ରୋଭିନ୍ସର ଯୋଉ କ୍ୟାପିଟାଲ ସେ ଯୋଉ ଗୁଆଙ୍ଗଡଙ୍ଗ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ତ କ୍ୟାଣ୍ଟନ, ସେ କ୍ୟାଣ୍ଟନ ଏରିଆରେ ଅଳ୍ପ ଏରିଆ ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକାରର ୟୁରୋପିଆନ ବାଣିଜ୍ୟ ବଣିକ ମାନେ ବା ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ସେଠି ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୋଦାମ ଖୋଲିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ହଂକଂ ହଉ ବା ମାକାଉରୁ ପାଖରେ ଯୋଉ ଅଛି ସେଠୁ ସେମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କି ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଆଣିକି ସେଇ କ୍ୟାଣ୍ଟନରେ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ କ୍ୟାଣ୍ଟନରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ବିକା କିଣା କରୁଥିଲେ। ଏ ଯୋଉ ବିକା କିଣା ସବୁ କରୁଥିଲେ, ୟା ଭିତରେ କଣ ହଉଥିଲା ଯୋଉ କହୁଥିଲି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଥିଲା, ସେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ତାକୁ ହଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ହଙ୍ଗ ମର୍ଚାଣ୍ଟସ ମାନେ ଚାଇନିଜ ମର୍ଚାଣ୍ଟସ ମାନେ ଚାଇନିଜ ସିଲ୍କ ଟି ଏସବୁ ବିକ୍ରି ହେଇ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନେ ବା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣର ମାନେ ଦଉଥିଲେ କଣ ନା ଗୋଲ୍ଡ ସିଲଭର। ଯେତେବେଳେ ଅଫିମ କାରବାର ହେଲା ସେଟା ବଦଳିଗଲା। ଯୋଉ ଅଫିମ କାରବାର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲାନି, ବେପାରର ଯୋଉ ବାଲାନ୍ସ, ବାଣିଜ୍ୟର ଯୋଉ ବାଲାନ୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିଗଲା ଏବଂ ଇଂରେଜ ମାନେ ବା ଫରେନର ମାନେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଲାଭବାନ ହେଲେ। ଏ ଯୋଉ ଓପିୟମ ଯୋଉ ବିକ୍ରି ହେଲା, ଏତେ ପରିମାଣରେ ବିକ୍ରି ହେଲା, ଏତେ ପରିମାଣରେ ବ୍ଲାକ ମାର୍କେଟିଂ ହେଲା, କୁହାଯାଉଛି ଯେ 18th ସେଞ୍ଚୁରୀ ବେଳକୁ 19th ସେଞ୍ଚୁରୀର ମଧ୍ୟ ବେଳକୁ ଏ ଓପିୟମର ବେପାର ବହୁ ଗୁଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଗଲା। ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ବେମାରୀତେ ପଡ଼ିଲେ, କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, କାହାର ଯୋଉ ମାଂସପେଶୀ ଦରଜ ହେଇକି ଫୁଲିଗଲା ଏବଂ କାହାକୁ ଇନସୋମନିଆ ବି ହେଇଗଲା, କିଏ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, କାହାର ଅନ୍ୟ ରୋଗ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଚାଇନାର ଯୋଉ ସରକାର, ଚାଇନାର ଯୋଉ ମାଞ୍ଚୁ ସରକାର, ସେ କଣ କଲେ ନା ମନା କଲେ କାହାକୁ ନା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ଏ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କି। କୁହାଯାଉଛି 1729 ମସିହାରେ ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର 200ଟା ପ୍ୟାକେଟ ପେଟି ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1767 ମସିହା ବେଳକୁ ଇଏ ହେଲା 1000 ପ୍ୟାକେଟ। 1800ରୁ 1820 ମସିହାକୁ 4500 ପ୍ୟାକେଟ ବା ପେଟି ବିକ୍ରି ହଉଥିଲା ବେଳେ 1820ରୁ 1830 ମସିହା ବେଳକୁ ଏ 10,000 ପ୍ୟାକେଟକୁ ମାଡ଼ିଗଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଏଥିରେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଇନାରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାବାଣ୍ଡ ବେଆଇନ ଯୋଉ ଅଫିମ ବିକ୍ରି କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଲାଭବାନ ହଉଥିଲେ। ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସେଠି ଶାସନ, ସେଠି ବେପାର କରୁଥିଲା, ତାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଇ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଧୀନତା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ। ଯେତେବେଳେ ମନା କରାଗଲା, ଚାଇନାର ଅଥରିଟି ମନା କଲେ ଯେ ତୁମେ ଏଠି ବିକ୍ରି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଇଂରେଜ ମାନେ କଣ କଲେ ନା ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। କେବଳ ଆଳ ଥିଲା ଇଏ ଓପିୟମ ଯୁଦ୍ଧ। ବହୁ ସ୍କଲାର କୁହନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଅଫିମ ଯୁଦ୍ଧ ଇଏ ଗୋଟେ ଆଳ ଥିଲା, କାରଣ ଏଥିରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେମାନେ ଚାଇନାର ଯୋଉ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ସେ ଯୋଉ ରାଜବଂଶ, ଯୋଉ ମୋନାର୍କି, ତାର ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଏମାନେ କଳନା କରିସାରିଥିଲେ, ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏମାନେ ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ନିଜର ପ୍ରିପାରେସନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଫାଇନାଲ ଯେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଗଲା ବହୁ ପରିମାଣରେ କଣ ନା ଯୋଉ ଅଫିମ ଜବରଦସ୍ତ ଜବତ କରିକି ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା ଇଂରେଜର ମର୍ଚାଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଯୋଉ ଅଫିମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଳି ଦେବା ପାଇଁ, ନଷ୍ଟ କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଲସ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ଇଂରେଜ ମାନେ କଣ କଲେ ନା 1840 ମସିହା ବେଳକୁ କଣ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଖବର ଦେଲେ ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଛୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା 1839 ମସିହାରେ ନୋଲୁନ ଏଷ୍ଟୁଆରୀ ପାଖରେ। ସେଠି 1839 ମସିହାରେ 4 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମେ 1840 ମସିହାକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ କଣ ହେଲା ନା ଜାହାଜ ସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଗରୁ ମାକାଓ ଠାରେ ଆଉ ହଂକଂ ଠାରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରିପାରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଓ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଡିଙ୍ଘାଇ ଯୋଉ ବନ୍ଦର ଥିଲା ତା ଉପରେ ବୋମାବାଡ଼ କଲେ। ତାପରେ ଆଡମିରାଲ ସାର୍ ଜର୍ଜ ଏଲିଅଟ ଯେ ତାର ଚିଫ ଡିପ୍ଲୋମାଟ ଥିଲେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ, ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହିଁଲେ। ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେଗୋସିଏସନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ନଥିଲେ, ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହିଁଲେ। 48ଟା ଜାହାଜ, 16ଟା ଛୋଟ ଜାହାଜ ଏବଂ 540ଟା ଗନ୍, ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଉପରେ ବଡ ବଡ ସବୁ
କମାଣ ସବୁ ଥାଏ ତାକୁ ଧରିକି ଷ୍ଟିମର ମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ନୌବାହିନୀର ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ରୟାଲ ନାଭିର ସୈନ୍ୟମାନେ କଣ କଲେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ଚାଇନିଜ ଫୋର୍ସ ଉପରେ ଇଏ ହଉଛି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ। ଚାଇନା ଏବଂ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରିର ଏ ପ୍ରଥମ ସାମରିକ ମୁହାଁମୁହିଁ ଏଥିରେ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଜୟଯୁକ୍ତ ଲାଭ କଲେ। ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମରିକ ଶକ୍ତି ଥିଲା ତାହା ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଏବଂ ନାନଜିଂ ଠାରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଧି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିବା ପାଇଁ କି ଚାଇନା ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ये जो ट्रिटी ऑफ नानकिंग ये हला ये होची एक प्रकारର ଗୋଟେ एकपाखिया संधि आ जबरदस्ती लदी दिया जायतिला समानता उपरे नथिला दुईटा पक्ष लढेई करसंदी संधि समान 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 हवा उचित ताहाई नथिला। ये ग्रेट ब्रिटेन बा इंग्लैंड क्वीन डायनास्टी ए युद्धर जो होइतिला जो युद्धर परिणाम हिसाब रे जेतु चाइना अति शोचनीय भाव में पराजय वर्ण करतिला फल हला कोन ना ये संधि रे चाइना को बहुत लज्जाजनक चुक्ति रे स्वाक्षरित करने को पड़ा। बर्तमान कौन है 1842 मसीहा अगस्ट 29 तारिख रे ये चुक्ति स्वाक्षरित है। प्रथम 21 मिलियन सिल्वर डॉलर बर्तमान इंग्रेज मानू चाइना सरकार युद्धर क्षतिपूरण बाबद देला। तापर कौन देला ना जो कोहोंग सिस्टम थिला जो बेपार होता कैंटन एरिया रे जो कोहोंग सिस्टम थिला जो चाइना रो जो बेपारी मानकर जो ग्रुप थिला से माने ताकरी थ्रू रे ही जो बेपार वाणिज्य होउथिला ताकू उठे देवा पे कोन करा गला ना इंग्रेज माने बाध्य कर ताकू उठे दिया गला। जहा पर हला कोन वर्तमान इंग्रेज माने ताकर एकचटिया वाणिज्य आरंभ कर देले। तापर हला कोन ना पांचटा द्वीप जो बंदर कैंटन को मिसेई की आमोए फोचो निंगपो संघाई ये चारटा बंदर युक्त कैंटन बंदर ये पांचटा बंदर बर्तमान इंग्रेज मान को छाड़ी दिया गला से वाणिज्य कारोबार करिवे एवं सेठी इंग्रेज माने से बसवास करिवे ताकर ट्रेडर्स माने बा व्यापारी माने ताकर पिला पिलु ने मध्ये बसवास करिवे एटा आगु अलाउ करा जाऊ नथिला। एवं हांगकांग जोडा को मुहान रे थिला जोडा को सुविधा होतला इंग्रेज मान को से ताकर मूल गोटे सेल्टर रखी सेठू चाइना सह से जो कारबार होता कैंटन देकी से हांगकांग को बर्तमान इंग्रेज माने संपूर्ण भाव में निज अख्तियार को नहीं गले एवं गोटे फिक्स टैरिफ करागला जे इंग्रेज माने जो बेपार वाणिज्य करूछंती से बेपार वाणिज्य से माने कौन करिवे ना एक पर्टिकुलर फिक्स रेट से माने कौन करिवे टैक्स देबे। एवं या पर मध्य बहुत ट्रिटी हेछि जे ट्रिटी ऑफ बाक कहा जाय 1843 मसिया रे हला एपर एथरे कहा गला जे इंपोर्ट ड्यूटी रहिला सेटा 5% रहिला वो एक्सपोर्ट ड्यूटी रहिला 1.5 रु 10.75% ए हिसाब रे तब रखा गला। ये जो ट्रिटी हला ये कोन गला ना ब्रिटिश को संपूर्ण एकचाटिया अधिकार दे गला जे ब्रिटिश सर्वे सर्वा हे गला एवं चाइना रो जो थिला जो इज्जत थिला ता धुली साथ हे गला तार जो प्रेस्टीज थिला जे जने ये बहुत शक्तिशाली देश यार लोक माने बहुत शक्तिशाली ये देशर लोक मानकर जो सभ्यता संस्कृति ये सबुठार उन्नततर जो भावना थिला जो चाइना सेंट्रिक मनोवृत्ति थिला चाइना लोक मानकर ता बर्तन धुली साथ हे गला एवं ब्रिटिश को बहु परिमाण रे क्षमता दिया गला जहा फल ब्रिटिश लोक माने कोन करे ना चाइना रा विभिन्न बंदर गुडी करे निजर एरिया दखल कले और सेटर बसवास करे जहा कहा जाय इंग्लिश रे राइट ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी। या पर हम देखिबा सेकंड ओपियम वार है द्वितीय ओपियम वार है 1856 रु 1860 मसिया पर्यंत। प्रथम ओपियम युद्ध बा फर्स्ट ओपियम वार इंग्रेज मान को जणे देला जे चाइना रो से शक्ति नहीं पाश्चात्य देश मान को सामना करिबा जो चाइना को मैंने डरू थे बर्तमान डरवार भी दरकार पड़ला नहीं एवं चाइना रो जो मांचू सरकार से निजे जानीगले जे तांकर आउ दम नहीं जे से पाश्चात्य शक्ति मान को सामना करि पारिबे। तेणु कौन है ना बर्तमान इंग्रेज मानकर जो लालसा जो लोभ वृद्धि पाइबार लगिला से देखिले प्रथम ओपियम वार रे ट्रिटी ऑफ नानकिंग रे जति से माने पाइछंती ता बहुत कम तांकर जो
बेपार वाणिज्य करबा पई ता अंकु नहीं ताकर आहुरी जगह दरकार आहुरी बंदर दरकार आहुरी ताकू दरकार कोन ना स्वाधीनता तेणु से माने कोनोसी उपारे एक प्रकार गोटे युद्धर वातावरण तैयारी करथले से चाइना सरकार को अपमानित करी हो चाइना सरकार के प्रतिनिधि मान को अपमानित करी हो बा चाइना रो जो विभिन्न प्रकार जो नियम कानून थिला ताकू भांगी की हो एवं केवल ब्रिटिश नुहे ब्रिटिश संगे फ्रांस अन्य यूरोपियन शक्ति माने मिसिकी मध्य ए चाइना सरकार को कोन करथले ना विभिन्न समय रे अपमानित करबा को पछौ नथिरे एवं ये जो युद्ध सेकंड ओपियम वार ये होची चाइना इंग्लैंड एवं फ्रांस मिसिकी ए चाइना संगे लड़ाई करथिले समय आसिला जोथरे इंग्लैंड और फ्रांस चाइना सह मिसिकी लड़ाई करथिले जो माने माने यूरोप रे परस्पर सहित युद्ध रे व्याप्त थिले एठी किंतु निजर स्वार्थ हासिल करबा पाई कि दुईटी शत्रु इंग्लैंड एवं फ्रांस चाइना रे मित्र भाव रे द्वितीय अफिम युद्ध बा सेकंड ओपियम वार रे माने लड़ाई करी थिले एमाने चाहुतले कोन ना ओपियम जो वाणिज्य ता बहु परिमाण रे मध्य रिस्ट्रिक्शन रो मुक्त होई नथिला दैट वाज नॉट स्टिल लीगलाइज ओपियम ट्रेड वाज नॉट स्टिल लीगलाइज एवं जो कैंटन शहर ये सब गुडी को पूरा ताऊ खोला है नथरा इंग्रज मानक पाई कि आउरी एरिया दरकार थोला एवं सेमान चाहुतले जे पेकिंग संगरे जो राजधानी थिला बेजिंग बा पेकिंग तांको सहित डायरेक्टली माने डील करि पार नथिले आमे जानिबा दरकार जे जो राजा चाइना राजा सह यूरोपीय व्यापारी माने सीधा देखा करि पारु नथिले एपरि कि चाइना रो जो लोकल शासन करता थिले तांको आगरे बसी कि इंग्रज माने बा पाश्चात्य देशर लोक माने पूरा लॉन्ग होई कि पडुथिले एवं परमिशन नै कि तांका से कथा वार्ता करूथिले तो ए बढिया सिचुएशन रे इंग्रज जो देखिला जे चाइना परास्त हे थरे चाइना रो जो तार जो दुर्बलता प्रकाश पाई जाईची तार सुजोग नै कि आउरी प्रेशर पकेला एवं ता फल हेला कोन ना जो सिचुएशन 1858 मसीहा बेलू पुणी द्वितीय युद्ध रे रूपांतरित हो गला आमे मने पके पर सेते बेले 1857 मसीहा बेलू भारत रे जो ग्रेट महान विप्लव सिपाही मानक सह संगठित होइतिला ताकू दमन कर सरला परे इंग्रज मानक शक्ति वृद्धि पाइथिला एवं से माने ताकर समस्त शक्ति को चाइना रे लगाई देथिले चाइना सरकार से युद्ध करिबा आउ गोटे इनसीडेंट थिला ताऊ कहा जाए आरो इनसीडेंट ये द्वितीय ओपियम वार को वार आरो वार कहा जाए कहीं कि ना गोटे जहाज थिला ता ना आरो से ता देहरे किछि लोक थिले जाउथिले जो माने कि चाइना सरकार ताकू अरेस्ट करबा को चाहुथिले किंतु ताकू इंग्रज माने करे दउ नथिले कारण चाइना गवर्नमेंट चाहुतला ये दोषी को अरेस्ट करिकि तार अनुसार दंड देबो किंतु ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहुतला ब्रिटिश अथॉरिटी चाइना जो थिले सेमान चाहुथिले जे ये जो लोक ये चाइना सरकार लोक नहंती ये हो ब्रिटिश सरकार लोक सब्जेक्ट बा तार जो प्रजा तेणु ताकू इंग्रज माने निज नियम अनुसार ताकू दंड देबे बा ताकू विचार करिवे तेणु यही इनसिडेंट को नहीं कहला चाइना गवर्नमेंट से युद्ध जहाज को तरे सीज कला से लोक अरेस्ट कला ता कौन कला ना इंग्लैंड एवं चाइना मध्य एक प्रकार तिक्तता सृष्टि कला 1858 मसीह आंग्लो फ्रेंच फोर्स इंग्लैंड एवं फ्रांस उभयंकर जो फोर्स ये कौन कले ना मिसिकी कैंटन कले एवं कैंटन शहर रे बड़ युद्ध आरंभ हो गला तापरे ये युद्ध नॉर्थ को गला साउथ रु नॉर्थ को गला आमे जानि छे कैंटन दक्षिण पटे थिला बेले बेजिंग पूरा उत्तर पटे अवस्थित तेणु पूरा बेजिंग शहर को आक्रमण करी पाई कि इंग्लैंड एवं फ्रांस रो मिलित सैन्य बाहिनी से यात्रा कले फल हैला कोन ना से बेजिंग अधिकार कले एवं से जो समर पैलेस थिला ताकू से ध्वंस कर देले ये तो बड़ विपद सामना करबा पाई कि मांचू सरकार बा मांचू साम्राज्य बा मांचू सम्राट प्रस्तुत नथिले से कोन कले ना सरेंडर कले एवं गोटे ट्रिटी पुणी आउथरे हैला ता ना हो ट्रिटी ऑफ टेंट सीन ये जो चुक्ति हैला 1858 मसीह रे ये जो चुक्ति कोन कला ना इंग्लैंड सह फ्रांस को मध्य चाइना रे एक शक्तिशाली
प्रभावशाली शक्ति भाव में परिणत करदेला ये जो क्विंग डायनास्टी एम्परर थे जियांग फेंग एम्परर तेणु जियांग फेंग एम्परर सामर्थ्य नथिला लड़ाई करबा पई कि तेणु से कौन कले ना एथिरे युद्ध रे हारिगला परे जो टेंशन ट्रिटी हला एथिरे रशिया एम्पायर थिला फ्रेंच एम्पायर थिला इंग्लैंड थिला एवं अमेरिका मध्य थिला एमा समस्त मिसी कौन कले ना ए जो ट्रिटी ऑफ टेंशन को से माने करेले एते कौन थिला तो पांचटा बंदर आगुरु ओपन थिला इंग्रेज मानक पई वर्तमान सब यूरोपीय मानक पई कि आउ 11टा बंदर ता तो 16टा बंदर टोटली जापान चाइना रो वर्तमान यूरोपीय मान को छाड़ी दिया गला से वाणिज्य कारोबार करबा पाई जते सब कोस्टल एरिया रे भलो भलो बंदर सब थिला ता वर्तमान चली गला कहा अंडर को ना पाश्चात्य वाणिज्य कंपनी मान को अंडर को एवं सेठी केवल सेति के हला नाही से पाश्चात्य रो लोक माने वाणिज्य करथिबा व्यापारी माने तांको पिला पिली माने तांको ऑफिशियल माने से समस्त जो अंचल रहिले से अबाध रे विचरण कले से अंचल रे चाइना गवर्नमेंट रो कोनोसी प्रभाव रहिला नाही तापरे जो टैक्स आदाय करा जाउथला चाइना मा तरफ रु ता बहु परिमाण रे कमी दिया गला एवं पेकिंग बा बेजिंग रे सीधा ये शक्ति मानक कौन हम ना डिप्लोमेटिक मिशन सब क्षेत्र रहिला ये जो आमे देखुचे जो स्वाक्षरता हला जो ट्रिटी ये ट्रिटी बहु परिमाण रे कौन कला ना पाश्चात्य देशर लोक शक्ति मान को बहुत परिमाण से स्वाधीनता दबारे साहाय्य करथिला एवं ये जो चाइना गवर्नमेंट परास्त हला ये परास्त होवार मूल कारण होची चाइना सरकार बहुत पछुआ थिले एमानकर शासन पूर्ण प्रकार रो थिला एमानकर जो युद्धर जो अस्त्र शस्त्र बहु पुराना काल रो थिला तेणु आधुनिक अस्त्र शस्त्र रे सज्जित आधुनिक अस्त्र शस्त्र सहित युद्ध कौशल रे सज्जित जो पाश्चात्य शक्ति माने इंग्लैंड फ्रांस अमेरिका जापान ये सब शक्ति मानक सामने चीन रो जो शक्ति चीन रो जो सामरिक शक्ति तिष्ठी पारला नहीं ये युद्ध रे चीन रो जो पराजय हला ये पूरा पूरी सारा पृथ्वी को जणै दिला जे चाइना बा चीन रो आगो बड़ी से अवस्था नहीं एवं परवर्ती समय देखा देछि जे इंग्रेज मानक सह यूरोपीय शक्ति माने समस्ते चाइना को बाध्य कले मन इच्छा से विभिन्न संधि स्वाक्षर कले एवं चाइना रो विभिन्न अंचल से जबरदस्त अधिकार करिकी से वाणिज्य कारोबार कले एवं चाइना रो जो लाभ होउतिला निज व्यापार जो थिला तांकर जो सिल्क आ टी सारा पृथ्वी को वाणिज्य होवा को जाउथिला ता प्राय वर्तमान सीधा जाई परला नहीं सेत्र जो आय होउथिला लोक मानकर ते आय गुडी को बहु परिमाण रे कमी गला एवं चाइना रो जो राजनैतिक शक्ति सह तार जो अर्थनैतिक शक्ति मध्य बहु परिमाण रे तार डिक्लाइन हैला बा तार अपतन घटिला तेणु ए सब विषय आलोचना कला बेले ए सब विषय आलोचना कला आमे अनुमान करि पारुचे जे आमे प्रथम रु भी देखि परिबा जेबेठु चाइना को पाश्चात्य देशर लोक माने आसिलेनी समस्त चाइना ऊपर आक्षेप होतले इथि पई कि चाइना एक विराट देश चाइना रे विभिन्न प्रकार वस्तु अच्छी चाइना रो विभिन्न प्रकार वाणिज्य द्रव्य रही चाइना देशर लोक माने विभिन्न बहुत परिमाण रे लोक चाइना रे वास करती एवं एते बड़ साम्राज्य गोटे एकक अंचल जोठी पाश्चात्य शक्ति माने भारत परे चीन को आसवा पर देखिले चीन होची एभली एक अंचल इठी बहु परिमाण लोक वास करती जोठी कि तांकर वाणिज्य कारोबार आराम रे एठी हेई परिबो प्रथमे से वाणिज्य कारोबार करे को आस्थिले आमे यदि संक्षिप्त रे आलोचना करिबा टिके टिके आमे जहा परंत आलोचना कली तार देखिबा जे चाइना को अधिकार करबा पई इंग्रज माने चाहि नथिले कारण भारत को समान अधिकार कर नै गेले कि चाइना को समान पूरा अधिकार कर नथिले चाइना वाज नेवर ए कॉलोनी फॉर द वेस्टर्न पावर्स भारत भली चीन केबे भी पाश्चात्य देश मानकर गोटे कॉलोनी बा उपनिवेश हेई नथिला किंतु जो परिमाण रे चाइना रो सरकार को चाइना रो लोक मान को
इंग्रेज माने एवं अन्य पाश्चात्य देशर लोक माने विभिन्न उपाय ताको अफेंडेड करबा को लागिले जो सेमानकर जो विभिन्न प्रकार संधि करे कि जो प्रकार अनइक्वाल ट्रिटी करे कि जो भाव में बारंबार युद्ध करी युद्ध डाकरा देकी जानी इंग्रेज माने पाश्चात्य शक्ति माने चाइना सरकार युद्ध पे प्रस्तुत नहांती माने युद्ध रे हरई पारिबेनी ता सत्वे भी चाइना सरकार को लोक मान आखिरे छोट देखा पाएगी चाइना सरकार शक्ति सामर्थ्य को बाहर दुर्बलता को बाहर परिप्रकाश करदे इंग्लैंड नेतृत्व में अन्य पाश्चात्य देशर शक्ति माने चाइना को आक्रमण कले आम जाचे जे युद्ध होता ओपियम को लेकिन अफिम को लेकिन अफिम बेपार करवा किसी खराब जिनस नाला कि बहु परिमाण बेपार करागला जहाँफल कि चाइनार बहुत लोक बहुत परिमाण लक्ष लक्ष लोक बीमार पड़े चाइना सरकार बारंबार बारण सत्वे चाइना अथॉरिटी मानकर जो कैंटन अंचल जो वाणिज्य कारोबार होता जो चाइना सरकार जो गवर्नर थे रिप्रेजेंटेटिव थे से माने बारंबार चाइना सरकार तरफ इंग्रेज मान को बारंबार मना कले सत्वे इंग्रेज सरकार ताहा शुणी नथिले इंग्रेज कंपनी ताहा शुणी नथिला एवं ये जो कंपनी जो 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 मनोवृत्ति ये जो अजब मनोवृत्ति जो प्रकार बेखातिर मनोवृत्ति ये मनोवृत्ति पाई ब्रिटिश सरकार मध्य दायी थे कारण से देशरू ये जो कंपनी सब दायित्व देते तमें तुम जेको जगह जाए वाणिज्य कारोबार कर जो वाणिज्य कारोबार हो पारुची वाणिज्य कारोबार कर जो प्रतिरोध हो युद्ध कर एवं इंग्रेज माने चाइना रे आसी जो वाणिज्य कारोबार कले से वाणिज्य कारोबार कौन कला ना चाइनार अर्थनैतिक मेरुदंड हलैदेला तापर जो चाइना जो मांचू सरकार थिला ताकू मध्य कौन कला ना तार पतन पाई बाट खोली देथिला ऐतिहासिक माने कहंती ए जो ओपियम युद्ध बा जो अफिम युद्ध दुईटी हेतिला प्रथम अफिम युद्ध एवं द्वितीय अफिम युद्ध ये दुईटी अफिम युद्ध जदियो चाइना सरकार जो राजतंत्र सरकार जो विभिन्न दुर्बलता को देखै देथिला बाहर को नहीं आसीथिला ये मध्य चाइना रे एक नुआ जुगर प्रचलन करथिला चाइना चीन वासी माने कौन कले से माने देखी पारले जानी पाइले जे परिवर्तन आवश्यक चीन रे जो गणतंत्र नहीं राजतंत्र सरकार से शासन करुची ये राजतंत्र अवस्था नहीं चाइना लोक मानकू सेमानकर जो पछुआपण बा बैकवर्डनेस रु मुक्ति प्रदान करिवो तेणु एक प्रकार नूतन प्रकार सिस्टम चाइना रे डेभलप कला मुंड टेकिला जहाँ आम कही परिबा जे सेटा होची कोन ना आधुनिक जो नेशनलिज्म मॉडर्न नेशनलिज्म बा जातीयतावाद ये जातीयतावाद आसिला जो पाश्चात्य शक्ति माने चाइना को अधिकार करिकी चाइनार लोक मान को बारंबार जो अपमानित करुछंती चाइनार जो शासन को बारंबार अपमानित करुछंती एवं एमाने जो हाई हैंडेडनेस एटीट्यूड वेस्टर्नर माने देखौतिले ता चाइना लोक माने सहय करि पारनथिले तेणु आमे एठी आलोचना करि परिबा जे जो ओपियम वार जदिओ चाइना रो मांचू सरकार हारि जाइतिले एवं चाइनार जो शासन थिला ताहा कोनोसी उपाय तिष्टि पारे अवस्था नथिला किंतु ये चाइना रे एक नूतन जुग को आनिबारे साहाय्य करथिला बहुत ऐतिहासिक माने कहंती जे द्वितीय अफिम युद्ध परे 1860 मसीहा परे जो समय आसुची तादर देखा जाउची चाइनार विभिन्न अंचल रे विद्रोह देखा देइची एवं चाइनार जो राजतंत्र अच्छी से राजतंत्र धीरे धीरे दुर्बल होउची और जार अल्टीमेटली तार पतन घटी 1911-12 मसीहा जो जिन हुई विद्रोह घटी से विद्रोह हवा फल कौन है ना चाइनार जो हजार हजार वर्ष धरिकी जो राजतंत्र शासन करुला ताहा चली जाइथिला तार पतन घटी और चाइना रे गणतंत्र प्रतिष्ठा होइथिला और रिपब्लिक ऑफ चाइना प्रतिष्ठा होइथिला जहा आधुनिक चाइनार आय आरंभ बोलिकी बहु ऐतिहासिक माने मत प्रदान करती।